Assalamu alaikum dear students, and welcome to another recorded lecture. So in the previous lecture we have already discussed about the variation and their classifications and causes. And now in this recorded lecture, in this class, we are going to discuss about the species and their different classification. What basically species are. If we see so many animals in the same time, we can observe that these animals look very different from each other, but we can tell that which animal is a cat and which are dogs, uh, because they belong to different species. The cat's face have similar shape, while all the dogs faces are different. The species, basically, let me tell about the definition of a species. The species is a group of organism that share the same characteristics. uh, if we discuss about the animals, the scientists have discovered nearly 2 million species, and according to the scientists there are 5 million species, more than 5 million species, different species present in this world, which are not even discovered yet. Alone in the forest of Amazon there are more than a million of species present in the forest of Amazon, and that are not even discovered yet. uh, but how can we decide that animal belong to same species? The question arises that how do we say that this animal belong to this species and the other animal belong to the different species? Because sometimes it happens that the uh, animal of the same species look very different, but on the other hand the member of different species look very same. uh, that is the reason the scientists use the definition to clarify whether the living things are the same species or not. The definition is member of a species can breed with each other and produce offspring that are able to breed. It's like that member of a species can breed with each other and produce offspring that are able to breed. For example, the animals, जैसे for example if there is a cat and there is a dog, they cannot breed each other, ठीक है, but a cat and a cat can breed एंड दे हैव अ ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब उनके जो भी आगे नस्ल चलती है या उनके जो भी, जैसे बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे होते हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग. कुत्ते हैं तो डॉग्स हैं, उनके बच्चे हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग. तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि एक कोई ऑफस्प्रिंग ऐसा हो जो कैट और डॉग का हो. कैट और डॉग का कोई ऑफस्प्रिंग नहीं होगा. जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो कैट और कैट का ही होगा. तो इसका मतलब कि कैट और कैट ही आपस में ब्रीड कर सकते हैं, कैट और डॉग आपस में ब्रीड नहीं कर सकते. दैट इज़ द रीज़न कि कैट की अलग स्पीशी है और डॉग की अलग स्पीशी है. अच्छा, देयर फॉर एग्जांपल कि जैसे हॉर्स है और डंकी है, दे कैन एक्चुअली ब्रीड विद ईच अदर, लेकिन इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ब्रीड नहीं कर सकता, ठीक है. तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ब्रीड नहीं करता, और हम इसको क्या बोलते हैं कि हाइब्रिड है या फिर इनफर्टाइल है. सेम गोज विथ लायन और टाइगर के साथ ऐसा होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेल लायन है और फीमेल टाइगर है, या मेल टाइगर है, फीमेल टाइगरस है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है, अगर इन्होंने साथ में ब्रीड कर लिया तो इनका जो ऑफस्प्रिंग है दैट इज़ नोन एज लाइगर. अब ये जो लाइगर होता है इट इज़ हाइब्रिड एंड इट कैन नॉट ब्रीड. ये इनफर्टाइल होता है, ये आगे ब्रीड नहीं कर सकता, ठीक है. तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये जो है वो सेम, इसीलिए हम ये काउंट करते हैं कि जो टाइगर है और जो लायन है ये अलग अलग स्पीशीज़ काउंट किए जाते हैं. हाँ,
अगर ये जो लाइगर था, अगर ये आगे ब्रीड कर सकता होता तो फिर हम लायन और टाइगर को एक ही स्पीशी काउंट करते, बट बिकॉज लाइगर जो है वो आगे ब्रीड नहीं कर सकता, दैट इज़ द रीज़न कि हम इसको अलग अलग स्पीशी काउंट करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बहुत एक लंबा टाइम पीरियड लेते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि एनिमल्स कोऑपरेट नहीं करते, तो स्पीशीज़ के लिए डिसीजंस लेना भी वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्पीशीज़ के लिए कुछ डिसीजंस लेना कि ये फला ये स्पीशीज़ से बिलोंग करता है ये एनिमल, या किस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है ये एनिमल। अच्छा, अब स्पीशीज़ को नेम कैसे किया जाता है? जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड है, वो हंट करता है तो वो अकेले हंट करता है, और ज़्यादातर नाइट में हंट करता है, और अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो स्पेंड करता है ट्री टॉप्स पे। आप इनको हमेशा देख भी नहीं पाते, बहुत ही रेयरली ये नज़र आते हैं, और ये साउदर्न चाइना और आइलैंड जैसे बोर्नियो जैसे आइलैंड्स हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इनका जो चाइनीज़ नेम है उसका जो मीनिंग है दैट इज़ मिंट लेपर्ड, लेकिन जो मलेशियंस बोर्नियो हैं वो कहते हैं ट्री टाइगर्स, यानी डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग लोग उनका नाम देते हैं। ठीक है, यानी चाइना में लोग उनको बोलते हैं मिंट लेपर्ड, और जो मलेशियन यानी बोर्नियो के करीब जो बोर्नियो में उनको बोला जाता है ट्री टाइगर्स। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था कि सब अपनी अपनी लैंग्वेज में उसका उन्होंने नाम रखा हुआ है, तो कंफ्यूजिंग हो जाता था, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड उनका नेम निकाला गया, और जो है वो एक मतलब लैटिन एक वर्ड उनका लैटिन नेम निकालते हैं, और इस तरह जो है वो सिमिलर स्पीशीज़ जो है वो फर्स्ट नेम उनका वही होता है, जैसे कि लायन और टाइगर दोनों ही साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और दोनों ही रोर करते हैं, तो उनका जो फर्स्ट नेम है वो हम कहते हैं पैंथेरा। ठीक है, यानी लायन हो या टाइगर हो, जो उनका लैटिन नेम काउंट किया जाएगा ना, वो फर्स्ट नेम उनका पैंथेरा होगा। इसके बाद जो सेकंड नेम आता है ना, वो आइडेंटिफाई करता है कि उनकी इंडिविजुअल स्पीशी। इसी तरह जैसे कैट्स हैं, कैट जो है वो पर करती हैं, और वाइल्ड कैट भी ऐसी होती है, तो जितनी भी सारी कैट्स होंगी ना, वो जो फर्स्ट नेम शेयर करेंगी वो होंगी फेलिस, यानी उनका जो लैटिन नेम जो स्पीशीज़ को नेम दिया जाएगा वो फेलिस होगा। अब सेकंड नेम पे आते हैं। सेकंड नेम जो है वो उनकी इंडिविजुअल स्पीशीज़ को डिफाइन करता है, जैसे कि कुछ लायंस होते हैं पैंथेरा लियो, टाइगर्स को क्या कहा जाता है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, इस तरह जो कैट्स होती हैं उनके भी डिफरेंट नेम है, न्यूफेलिस, इसके अलावा भी और डिफरेंट नेम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज़। अच्छा, क्लाउडेड लेपर्ड जो हैं बोर्नियो में और चाइना में उनका सेम नेम है, जैसे लेकिन इनको कहा जाता क्या है, नियोफेलिस निबुलोसा। साइंटिस्ट ने चेक किया कि ये वाकई जो है वो सेम स्पीशी है, यानी चाइना वाले भी जो हैं वो उसी को न्यूफेलिस निबुलोसा कह रहे हैं, और मलेशियन वाले भी उसी को कह रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो बजाय इसके कि वो ब्रीड करते क्लाउडेड लेपर्ड को, इन्होंने इनके जो सेल के जो जेनेटिक्स थे उनको चेक करना शुरू कर दिया कि सेम है या नहीं है। अब इनको इस टाइम पर ऑल्दो सब सेम कहते थे, लेकिन अब जब जेनेटिक्स चेक किए तो दे रियलाइज कि नहीं, द मलेशियन बोर्नियो के अंदर जो बोर्नियो आइलैंड के अंदर जो निबुला फेलिस थे, निफेलिस निबुलोसा थे, दैट वर डिफरेंट, और चाइना वाले वर डिफरेंट। तो फिर क्या हुआ कि जो बोर्नियो वाले थे उनकी एक सेपरेट स्पीशी बना दी गई, दैट इज़ न्यूफेलिस डायार्डी। ठीक है, उनका नाम चेंज करके उनको एक डिफरेंट स्पीशी काउंट कर दिया गया, दैट इज नोन एज न्यूफेलिस डायार्डी।
तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली नेम करना और उनकी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ये जो डिफरेंट जेनेटिक्स के एनिमल्स होते हैं, अब इनकी कुछ क्लासिफिकेशंस भी होती हैं, यानी हम इनको कुछ ग्रुप्स में पुट कर देते हैं। अब ये ग्रुप्स क्या होता है कि कैसे हम ग्रुप्स में पुट करते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं एनिमल्स में ही, एनिमल्स की ही स्पीशीज़ के क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स बनाए हैं। जैसे वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रे है, आर्थ्रोपॉड है, प्लांट्स की भी कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ को हमने आर्थ्रोपॉड में, कुछ इंसेक्ट्स हैं, और भी डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को पढ़ें तो सबसे पहले हमारे पास आता है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो आपस में सब ग्रुप में डिवाइड हैं, दैट इज़ नोन एज वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। अब कैसे पता चलेगा कौन वर्टिब्रेट्स हैं? बेसिक डिफरेंस क्या है? वर्टिब्रेट्स आर दोज विच हैव बोनी स्केलेटन्स और फॉर एग्जाम्पल विच हैव बैक बोन्स, but invertebrates don't have any bones and they don't have any backbone. अच्छा, sometimes it's very difficult to tell that which one is a vertebrate or which one is a non-vertebrate, because a roundworm and snake, they look very alike, they look very similar, but the roundworm is invertebrate and the snake has a backbone, that is why it is a vertebrate. So we have already make the different groups in invertebrates also. There are different groups in invertebrates also. So the basic classification of groups are vertebrates and invertebrates, and there are further classification in invertebrates, that are arthropods, insects, annelids, nematodes, flatworms, and other. Um, Let me discuss that insects. If I talk about insects, they have 6 legs. Our arachnids, they have 8 legs. Crustaceans, they have 2 pairs of antennas, and myriapods, they have long bodies, and it is divided into different segments. And if I talk about vertebrates are also divided into subgroups that are known as warm-blooded animal and cold-blooded animals, amphibians, and reptiles. Basically the mammals are known as warm-blooded animals. Their body temperature is around 37 degrees Celsius, and it takes a lot of energy to keep the body of a mammals warm, so they need to eat more food for their size than species in other vertebrate groups like fish, amphibians, reptiles, and सबसे इसको ज़्यादा अच्छा फूड चाहिए होता है. अब द फर्स्ट वन एक और ग्रुप है, दैट इज फिश. फिश वाला जो ग्रुप है, दे आर ओनली फाउंड इनसाइड द वाटर एंड दे हैव गिल्स, so that don't work in the air. These gills can only work in water. So basically the first group of vertebrate is fish. Then we have amphibians. They can breathe in air but they only reproduce in water. जैसे कि हमारा फ्रॉग होता है. फ्रॉग जो है वो एयर में भी रहता है, टर्टल्स भी एयर में रहते हैं, लेकिन ये ब्रीड कहाँ जाके करते हैं? वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं, और इनके गिल्स भी होते हैं. इसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स. ये ड्रायर प्लेस पे रहते हैं और इनकी जो वाटरप्रूफ बॉडी कवरिंग्स होती है, और ये वाटर के बगैर भी रिप्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद है मैमल्स, जो है वो जो बर्थ देते हैं, ये यंग मैमल्स को ही
वो करते हैं, बर्थ देते हैं और फिर ये फीड करते हैं उनको मिल्क के ऊपर। जैसे कि काऊ है, काऊ का मिल्क होता है, तो इनके जो यंग वंस होते हैं, इनकी जो ब्रीड करके जो इनकी ऑफस्प्रिंग होती है, ये इन्हीं के मिल्क के ऊपर सरवाइव करती है। अच्छा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के जो है ना, वो दूर से उनको देख के उनको डिस्टिंग्विश करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बोथ दीज एनिमल्स हैव 4 legs and a tail. For example, the salamander is an amphibian. Its skin is smooth and moist, and it lives in cool, damp places. Its youngs developed in water, so they have gills instead of lungs. In the same way, the gecko is a reptile. They have tough scales to protect skin, and it lays its eggs on land. ऑल्दो दे, अगर हम दूर से देखें तो ये हमें एक जैसे ही लगते हैं, बट दे आर डिफरेंट. सम रेप्टाइल्स लिव इन वाटर और नियर वाटर, बट गेको लाइक्स हॉटर ड्रायर एनवायरनमेंट्स.